3, 2, 1. جی آپ مسلم ہیں بھائی جان؟ جی جی الحمدللہ. چلیں بڑی اچھی بات ہے. سبحان اللہ. یہ جو سویڈن کا مسئلہ بھی چل رہا ہے جس پر میں آج بات کر رہا ہوں، ٹاپک ہے جو میرا آج کا، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سویڈن میں جو قرآن جلایا جا رہا ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ دیکھو کسی بھی آدمی کا جو کوئی مذہبی اسکرپچر ہوتا ہے، کتاب ہوتا ہے، تو اس کی اس طرح جو ہے نا گستاخی کرنا، چاہے جسی بھی مذہب کا ہو. تو آپ کو پتہ ہے کوئی کسی کتاب کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. تو جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی دل ہرٹس ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا چلیں، یہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر کسی کی کتابیں جلاؤ گے تو ان کی دل آزاری ہوگی، ان کا دل دکھے گا. لیکن آپ کی کتابوں کے اندر جو کافروں کو اتنی مذمت کی گئی ہے، ان کو اتنے برے الفاظ میں پکارا گیا ہے، اس سے کافروں کا دل نہیں دکھتا کیا؟ ان کے بتوں کو، ان کے معبودوں کو جو گالی دی گئی ہے، برا بھلا کہا گیا ہے، آپ کے رسول اللہ نے جو دوسروں کے معبودوں کو گالیاں دی، اس سے ان کا دل نہیں دکھتا تھا کیا سر؟ دیکھو اسلام کی روح سے جو ہے نا، جو آدم علیہ السلام جو آئے ہیں نا سب سے پہلے، جی. اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کس کو پیغمبر بنا کر بھیجا؟ آدم علیہ السلام کو. آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا؟ قرآن سے معلوم ہوا. قرآن میں آیت دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیغمبر تھے؟ جو آدم علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے پہلے پارے کے اندر بھی قرآن میں آیت پیش کریں کہ کس آیت میں آدم کو پیغمبر پکارا گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کے اندر ان کو کہا گیا ہو، حدیث کے اندر آپ نبی نے علیہ ابھی کہا السلام. قرآن سے، میں نے پوچھا آپ کو معلوم کہاں سے؟ آپ نے کہا قرآن سے، تو قرآن میں وہ آیت ہوگی نا جس میں ان کو پیغمبر کہا گیا ہوگا، تبھی تو آپ کو قرآن سے معلوم ہوا. ٹھیک ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ جو آیت ہے آیت کا نمبر بتائیں، اور چیپٹر نمبر بتائیں، اور آیت نمبر بتائیں. کون سی آیت سورہ نمبر ہے؟ تو مجھے کیا یاد ہے؟ نہیں، مجھے سورہ بقرہ ہے، زبانی مجھے یاد ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن جو ہے نا وہ آپ کو شارٹ میں ایک منٹ بتاتے ہیں، ایک تفسیر آپ کو. منٹ ایک منٹ سورہ بقرہ کی میں آپ کھول دیتا ہوں، میں کھول دیتا ہوں. وہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں میں کھول دیتا ہوں، مجھے اس میں دکھا دیں کہ کہاں ان کو پیغمبر کہا گیا ہے. چلیے جی، آج اسی پہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ والی کہہ رہے ہیں کہ اس والے ربو کا الملائکتی، یہ والی انی کہہ رہے ہیں. جاعل فی الارض خلیفہ، ہاں یہ والا. ہاں جی ہاں جی، میں اسکرین پہ لے کے آ رہا ہوں، یہ 2 کی 30 ہے. ٹھیک ہے سر، سورہ البقرہ کی آیت ٹھیک. نمبر 30 ہے یہ. مجھے اس میں ذرا پروفٹ کا مجھے آپ لفظ دکھائیں کہاں. آپ تو پوری بات تو پہلے سن لے. جی جی میں پوری آپ کی سنوں گا، میں اسکرین پہ آیت رکھ لوں ذرا، اور پھر آپ کی پوری مکمل آیت بات. آپ کو یہاں پہ پروفٹ کا لفظ نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پہ آپ کو نبی علیہ نہیں تو پھر السلام کی. آپ کو تو مجھے پروفٹ ثابت کرنا ہے نا اس آیت سے، تو وہ آپ ثابت کیجیے گا. میں آپ کو حدیث سے ثابت کراؤں گا. نہیں کیوں؟ قرآن سے نہیں، قرآن میں نہیں ہے. آپ نے بھی کہا تھا مجھے قرآن سے پتہ چلا، تو آپ نے جھوٹ بولا ٹھیک تھا. ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جی مجھ سے سبقت لسانی ہو گئے کہ وہ حدیث ہے، ہر چیز قرآن کے اندر نہیں ہے، نہیں، کچھ چیزیں لسانی جو ہے، سبقت لسانی جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، آپ ہندی میں بولیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی. سبقت لسانی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سلینگ آف ٹنگ. ہاں وہی غلطی ہو گئی، آپ سے غلطی ہوگی، مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہاں میں نے یہ غلط بولا کہ قرآن سے حدیث سے، لیکن قرآن کے اندر جو تفصیل ہے وہ آپ کو حدیث سے ملتی ہے نا، تو اس کو آپ الگ بھی نہیں کر سکتے. ہاں تو قرآن کے اندر وہ کون سی آیت ہے جس کی تفصیل میں آدم کو جو ہے نبی کہا گیا ہے؟ ذرا مجھے بتا دیں، میں وہ اس کی تفسیر کھول دیتا ہوں، بتائیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ احادیث کے اندر آپ کو تفصیل ملے گی تمام انبیاء کی. یار کہیں تو آؤ، یار کہیں تو آؤ. میں کہہ رہا ہوں کون سی آیت کی تشریح ہے جس میں ان کا پروفٹ کہا گیا ہے، وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کی حدیث کے اندر ہو، قرآن تو کی تفسیر کے مطلب قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آدم کی نبوت کا، وہ پوری ہوائی بات ہے آپ کی، رائٹ؟ بھائی کیوں باتیں الفاظ جب قرآن کے اندر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ چلیں آپ والسلام یہ نے جب کام کریں، پیغمبری کا تو میں نے آپ کو بڑا بھاری کام دے دیا، اور آپ مجھے انداز سے بات کرنے، گفتگو کرنے کے انداز سے مجھے آپ ایک عالم محسوس ہو رہے ہیں. آپ کی فراغت کہاں سے ہے جناب؟ میں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. چلے، کون سی یونیورسٹی سے؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے؟ کراچی یونیورسٹی. جی کراچی یونیورسٹی سے. اچھا، کراچی یونیورسٹی سے پڑھے، ماشاء اللہ، پھر تو آپ عالم فاضل ہیں. تو چلیں آپ ایک کام کریں حضرت، آپ یہ تو بہت بڑا مسئلہ دے دیا میں نے آپ کو پروفٹ ہوڈ کا، آپ مجھے پورے قرآن سے آدم کو مسلمانی ثابت کر دیں. گو اہیڈ. کسے؟ پورے قرآن سے مجھے آپ آدم کو مسلمان ہی ثابت کر دیں کہ وہ مسلمان تھا. گو اہیڈ. یہ ساری چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ حدیث کو جب نہیں مانتے تو اس سے صرف قرآن ہمارے پاس ٹوڑے ہیں، ہمارے پاس حدیث بھی ہے، قرآن اور حدیث دونوں مل کے چلتے ہیں اس سے. ارے کیا سوال پوچھا سمیر تم نے، آدم کو مسلمان ثابت کر، ان کا پورا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت یہاں پر 16 سے 64 لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان مدنیوں کو جوتے مارنا چاہتا ہوں، دونوں حرام خور مدنیوں کو، جو کہتے ہیں کہ آدم پہلے نبی اور مسلمان تھے، اس لیے تمام تمہارے غیر مسلم ہو کر ہندوؤں کے جتنے بھی تم لوگ ہو، تم سب کے پوروج جو ہیں وہ مسلمان ہی ہے.
अबे सुअर के बच्चों मदनियों, मुझे पूरी कुरान से साबित करो कि तुम्हारा आदम प्रॉफिट और मुसलमान था। आओ, चैलेंज है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, चैलेंज, साबित करो आकर के। हदीस पे क्यों जाते हो फिर? कुरान से साबित नहीं है क्या? भाई आप हदीस को जब नहीं मानते तो उसमें क्या कर सकते हैं तो बताओ? भाई मैंने कब कहा कि मैं हदीस को नहीं मानता, लेकिन मैं उस बात को नहीं मानता और आप तमाम मुसलमान उस बात को नहीं मानते हदीस की, जो कुरान की मुनाफी करती है, कुरान के खिलाफ जाती है। जब कुरान उसको प्रॉफिट या फिर मुसलमान नहीं कह रही है, तो हदीस में कहां से आ जाएगा भाई? हदीस की तफसीर कौन बताते हैं मुझे बताओ? कुरान की तशरीह कौन? पहली बात तो आप अपने आप को स्कॉलर कह रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता हदीस की तफसीर नहीं होती, हदीस की तशरीह होती है। हदीस की कुरान की बात, कुरान की तफसीर कहां से हमें मिलती है? कुरान की तफसीर हमें कहां से मिलती है बताएं? कौन सी तफसीर खोल दूं इस आयत की? 2 की 30 की कौन सी मैं तफसीर खोल दूं जिसमें मुझे आदम प्रॉफिट और मुसलमान मिल जाए? मुझे वो बता दें। ये आपकी स्क्रीन पर आ गई है सारी तफसीर, तफसीर इब्न कसीर, तहकीमुल कुरान, मारिफुल कुरान, तदब्बुरुल कुरान, एहसानुल बयान, आसान कुरान, फी ज़िलाल कुरान, तफसीर उस्मानी, बयानुल कुरान, तफसीर कुरान, ताइसिर कुरान, तफसीर माजिदी, तफसीर जलालैन, तफसीर मजहरी, कौन सी खोल दूं भाई? तफसीर इब्न अब्बास, जिसमें मुझे आदम जो है प्रॉफिट और वो मिल जाए मुसलमान, बताइए कौन सी खोल दूं शायद? ठीक है, ये आप ऐसा करें, मैं इसको सर्च करके आपको पूरे जो रेफरेंस है ना, अभी मेरे जहन में नहीं है, उसको सर्च करना पड़ेगा, मैं आपको दे दूंगा फिर, ठीक है? चले, बेहतर हो गया, आप इस पर रिसर्च करेंगे, मजीद रिसर्च करके इस पर आगे बात करेंगे। अब आज के टॉपिक पर आइए। आपने ये कहा कि मुसलमानों का अकीदा जुड़ा है कुरान के साथ, तो इसलिए उसको जलाना गलत है। उस कुरान के अंदर काफिरों के बारे में क्या लिखा गया है, वो कौन बताएगा? क्या लिखा हुआ है बताएं? उनको शरुल बरिया कहा गया है, सुम्मुन बुकमन उम्मुन फाउन ला यरजून कहा गया है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन कहा गया है, उनको सुअर कह रहे हो, टट्टी कह रहे हो, अंधा बहरा गूंगा कुत्ता कह रहे हो, वो तुम्हारी कुरान नहीं जलाएंगे तो क्या? आप एग्जैजरेशन कर रहे हैं भाई, अंधा गूंगा बहरा तो कहा गया, टट्टी और ये चीज आप कहां से लेके आ गए? ओके ओके ओके, लेट मी शो यू। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 28, इन्नमल मुशरिकून नजसुन का ट्रांसलेशन करके बताएं क्या होता है? आप नजिस किसको कहते हैं मुझे बताओ, नजिस किसे कहते हैं? नजिस का मतलब, वही तो पूछा, नजिस का मतलब क्या होता है आपसे पूछ रहा हूं मैं। दिस इज माय आप बताओ ना, क्वेश्चन। आप फिर समझाता हूं ना, आप या बताएं। अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये जो नजस है इसका ट्रांसलेशन क्या होता है भाई? आप बताओ ना, आप क्या समझे, मैं बताता हूं आप। अरे भाई ये लिखा हुआ है नीचे मेरे भाई, इतनी जलेबी की जरूरत ही नहीं है। ये रहा यहाँ पर, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये क्या है? पलीद। पलीद किसको कहते हैं? टट्टी को तो कहते हैं भाई, किसको कहते हैं पलीद? ये आप देखो, आपको और तर्जमा निकाल, मैं आपकी बिल्कुल लफ्जी तर्जमा, नजिस अरबी के अंदर किसी और चीज को कहते हैं, उर्दू के अंदर किसी और चीज को कहते हैं। नजिस सुनिए मेरी बात, नजसुन अरबी का लफ्ज है। सुनिए मेरी बात, नजस जो है वो अरबी का लफ्ज है, उर्दू का नहीं है मेरे भाई। पहले तो आपको मैं यहाँ करेक्ट कर दूं, उर्दू ने अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर, दोनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है? लेकिन अरबी के अंदर इसका मतलब होता है कि एक बात बता दो, ये ठीक है, ये ठीक कहा आपने कि अरबी और उर्दू दोनों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अरबी ने उर्दू का लफ्ज ऑन नहीं किया, उर्दू ने अरबी का लफ्ज ऑन किया है, यानी कि उर्दू जबान में अरबी का लफ्ज डाला गया, अरबी जबान में उर्दू का लफ्ज नहीं डाला गया। मैं आपको नजिस का जो यहाँ पे सुनिए ना, अरबी में जो लफ्ज है नजसुन, इसका जो मतलब है वो होता है पलीद, नापाक। नजस जो है वो आप हमेशा पाखाने को ही कहते हैं भाई। तो आपकी किताब जब काफिरों का पाखाना कहेगी, पलीद कहेगी, तो वो आपकी किताब को जलाएंगे नहीं तो क्या माथे लगाएंगे? आप जब आप जबरदस्ती की माने कुरान में घुसा रहे, तो मैं क्या बताऊं नजिस के पहले माना समझ में आपको बता है नजिस का माना, मुझे आप बता दें क्या होता है नजिस का माना? बता। नजिस से मुराद यहाँ पर अकीदे की गंदगी मुराद है, और अकीदे की गंदगी, अरे भाई कोई सी भी गंदगी है, इसका माना क्या होता है? अकीदा का लफ्ज नहीं है यहाँ पर अकीदा का लफ्ज नहीं आया। तो ये देखो कुरान की कॉन्टेक्स्ट आप जो है ना, उससे पता चलता है कि उनके अकीदे के एतबार से उनको नजिस कहा गया है कि भाई वो एक खुदा के अलावा। इस आयत के अंदर कहा क्या जा रहा है, पहले आप पूरा टेक्स्ट पढ़ें, इसका कॉन्टेक्स्ट समझे कि आयत क्या है, क्या आ रही है। मोमिनो, मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो खानाए काबा के पास ना जाने पाए, और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो खुदा चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा, यानी मालदार कर देगा। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला है। ये आयत आई किनके बारे में थी और कब आई थी? जब इन लोगों ने, जब वो ट्रीटी वगैरह सिस्टम चल रहा था आपका, और इन मुशरिकों के साथ इनकी जंग हो गई थी, तो इन्होंने खाना काबा का तवाफ करने के लिए, मुशरिक लोग आया करते थे, तो इन्होंने कहा कि इन मुशरिकों को खाना काबा के पास मत आने देना। अब ये जब आते थे मुशरिक लोग हज करने के लिए, वहां पर तवाफ करने के लिए, तो आपके मुसलमानों की जो तिजारती कारवां और काफिले चलते थे, दुकानें चलती थी, उनसे ये लोग खरीदारी करते थे, तो इन लोगों की दुकानें चलती थी, उनसे इनका घर बार चलता था। तो जब ये कुरान के अंदर इसकी ममानत आ गई कि इनको खाना काबा के पास मत आने देना, तो उन्होंने सवाल किया कि भाई हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तब ये मुकम्मल आयत नाजिल हुई कि ये जो मुशरिक हैं, ये नापाक हैं, इनको अपनी पाक जगह पर आने मत दो, यानी कि इनको खाना काबा के नजदीक आने मत दो। अगर तुमको मुफलिस का खौफ है तो अल्लाह तुमको गनी कर देगा। अच्छा, अब जो आप तर्जमा जो बता रहे इसकी नीचे उसकी तफसीर है उर्दू में, आप पढ़े जरा। हाँ बिल्कुल सर, तफसीर बताइए कौन सी पढ़े, ये लीजिए तफसीर। मुशरिकीन को हुदूद हरम से निकाल दो, अल्लाह ताला अहकामुल अपने पाक दीन वाले पाकीज़गी और, चले पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़ो आप पढ़ो ना।
नहीं पढ़े ना आपने तफसीर पेश की है, मैंने नहीं की ना, आप पढ़े, आप पढ़ के बताएं। आप पढ़े ना, मैं बताता हूँ ना कि आपको समझ में आ जाएगी। आप अल्फाज को बगैर अपने हिसाब से तशरीह दे देते हो, फिर कहते हो कुरान ने उसको ये कहा, भाईजान ये कहा। मैंने आपको इस आयत का असबाब नुज़ूल बयान कर बता रहे हैं, हजरत नहीं सुनिए कोई ना, आपको मतलब लेकर नहीं हजरत बता रहे। सुनिए ना, आप देखिए बयानबाजी से कोई हल हासिल होने वाला है नहीं, या तो आप इसकी तफसीर पढ़ के कुछ साबित कर दें, या तो मेरी बात को आप गलत साबित कर दें, बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। ये नीचे लिखा हुआ है मुशरिकीन को हुदूदी हरम से निकाल दो, उसकी वजूहात क्या है वो आप नीचे पढ़ो, उसमें आपको ये आप नजिस का पढ़िए माना ना, भी पढ़ समझ के मुझे बताइए ना वजूहात क्या है, प्लीज पढ़िए ना वजूहात क्या है प्लीज। आप पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ताकि आप मैं लोगों को क्यों गुमराह मैं सर मैं सर मैं सर क्यों मेहनत करूं जब मुझे ट्रांसलेशन काफी है। आपको पढ़नी है तफसीर आप पढ़े। यही मसला है ना, आपको जो कंफ्यूजन हो जाती है वो आप ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते खुद नहीं है, उसकी समझते नहीं है, और उसका तशरीह आप नहीं पढ़ते, सिर्फ तर्जमे को देख के लोगों को जब आप गुमराह करते, तो फिर यही मसला निकलता है। फिर आप अरे बहुत सारी भाई चीजें मैं कह रहा हूं अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं समझने में तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर ये मेरा हक है कि आप मुझे सही बात की तबलीग करें और दीन इलाही के साथ मुझे आप जोड़ें। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो तफसीर है, तफसीर इब्न कसीर, इसको आप पढ़ करके मुझे आप क्लियर करें कि नजस उनको किस चीज के मुतालिक कहा जा रहा है। प्लीज गो अहेड। यही तो मैं आपको बता रहा था कि इनको अकीदे के एतबार से नजस कहा गया, लेकिन आप नहीं मान रहे इसको। अरे भाई नजस तो कहा गया, नापाक तो कहा गया, टट्टी तो कहा गया, पलीत तो कहा गया ना, मेरा मुतालबा ये है किसी भी एतबार से कहा गया ना उनको। अकीदे के एतबार से कहा गया भी कि आपका तो जो उनका अकीदा है, अकीदा, एक मिनट, जब उनका अकीदा आपके लिए नजस है, नापाक है, टट्टी है, पखाना है, तो फिर वो तुम्हारे अकीदे को क्यों सर पे रखें, तुम्हारे अकीदे की किताब जलाएंगे वो। नहीं तो आप उनकी तरफ से तर्जमान क्यों बन रहे हैं फिर आप? मैं बन रहा हूँ, मैं भी काफिर हूँ भाई, मैं भी इसी में आता हूँ, मेरे हाथ में दो कुरान तुम्हारा, मैं भी जलाऊंगा। ठीक है, फिर आप कौन से भगवान को मानते हैं बताइए? मैं इंसानियत को मानता हूँ, आप नहीं मानते तो मना कर दो। ये कौन सी इंसानियत है कि आप मुसलमान इंसानों को आप हट कर रही है? कौन सी इंसानियत है, मुझे ये बताएं। इंसानों का हट कर रहे हैं, और आपकी इंसानियत क्या है कि आप तमाम दुनिया के नॉन बिलीवर्स को गालियां दे रहे हैं, आप उनको कुत्ता बोल रहे हैं, सुअर बोल रहे हैं, बिल्ली बोल रहे हैं, गंदी बोल रहे हैं। आप खुद इसको अपनी तरफ से गाली बना रहे हैं, हालांकि इसका मतलब कुछ और है। मैंने बता दिया आपको कि भाई ये जलेबियों की जरूरत नहीं है, अगर वो अकीदे के एतबार से भी आप उनको नजस बोल रहे हैं तो तब भी आप उनको नजस बोल रहे हैं, क्योंकि उनका अकीदा है ना वो, तब भी वो नजस हो गए। कितनी जलेबी बनाओगे, आप कहीं नहीं जा सकते आप भाई। मैं आपको बस अकीदा का अकीदा आपके लिए नजस है, आपके लिए गंदा है, पलीत है, तो फिर आपका अकीदा हमारे लिए टट्टी से भी बदतर है। हम पेशाब भी नहीं करते आपके अकीदे के ऊपर। मलीच लोग हैं हमारे लिए, आप मलीच हो। आप रात दिन 5 टाइम अजान कहते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो हम सब जिसको पूछते हैं हम सब पागल हैं? हमारे माबूदों को तुम 1 मिनट में झूठा बोलते हो, गलत बोलते हो, उनको गाली देते हो, हमारा दिल नहीं दुखता होगा क्या? देखो आप जो है ना चीज को गड़बड़ कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है ना इसको तफसीर को पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी सारी चीजें दूर हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अपना मस्जिद वेस्ट जो है टाइम तो है लेकिन जवाब नहीं है, इस पे तुम भाग रहे हो। भाग जाओ, बता दिया, भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, भाग जाओ, निकल जाना। ये जलेबियां वहां बनाना बेटा जी जहां थोड़ा बहुत इल्म ना हो किसी के पास, वहां जलेबियां चल जाएंगी, ऐसे मुस्लिमों के सामने नहीं चलती। तुमको तुम्हारे उस्ताद मोहतरम ने बताया नहीं कि फिरका परस्ती की डिबेट करना, मुर्तद के साथ डिबेट नहीं करना, कभी बताया नहीं शायद तुमको स्कूल में, इसलिए तुम इधर मुंह उठा करके आ गए होते का खुर। So please subscribe, whatever.